کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں. آج سے ہم رائٹرز کیفے میں ایک سیریز آف سیشنز کا آغاز کر رہے ہیں میٹ دا رائٹر اوور پرفارمنس، جس میں ہم ہر 15 دن بعد ایک پاکستان کے کامنس رائٹر کو بلایا کریں گے اور وہ آ کے اپنی لائف کو چیز کریں گے اور اپنے ان کا لیجنڈری ورک ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے. اور ان کے پیئرس ان کے عام اثر جو ہیں وہ بھی ان کے جو ان کا ادبی کام ہے اس پر آپ کے اپنا اظہار رائے کریں گے. اس سلسلے میں آج جو پہلا سیشن ہے وہ ان کے مشہور فکشن رائٹر مفتی صاحب کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں اور ان کے ہم اثر بھی یہاں پہ موجود تھے جو کہ ان کے ادبی کام پر روشنی ڈالتے ہیں. اپنے پاکستان کے لوگ ریٹرس کے چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد قاسم کو کہتا ہوں کہ وہ اس سیشن کا باقاعدہ کریں گے ان کو کہیں گے کہ 5-6 آپ نامنیٹ کریں. آپ کو ایسا آپ کو پڑھا ہو یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. آپ کی مرضی سے سمجھائیں آپ کیا تو ہمیں امید ہے کہ آپ نے صحیح سلیکشن کی ہے, صحیح دوستوں کو دعوت دی ہے. ساتھ پتہ کروا نہیں سکتے اس حوالے سے آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. نئے لوگ آئیں گے, نئے پڑھنے والے بھی پیدا ہوں گے. اور سیریز کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری لیجنڈری ہیں جنہوں نے بہت نام کیا ہے, سوسائٹی میں امپیکٹ کیا تھا, لوگوں نے پڑھا ہے, ان کے حوالے سے بات کی ہے. ان کے ذاتی حوالوں سے بھی, ان کے کرداروں کے حوالوں سے بھی, اور جن لوگوں نے لیکن پڑھا ہوگا تو ان سے لوگ مشکل سوالات بھی پوچھیں گے اور آسان باتیں بھی کریں گے. سوالات کے طور پر یہ جو فکشن رائٹر ہوتے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ یہ کریکٹر ایسے ہی ہے, کسی میں فرق نہیں ہے, لیکن اکثر فرق بھی ہوتی ہے. اس قسم کی پستکوں میں ہم ان شاء اللہ اس کی باتیں پڑھا دی جائیں گی. رمضان اور افطاری کی وجہ سے کچھ ٹائم کی ہمارے پاس کنسٹینٹ ہے, اس لیے جو دوسرا سیشن ہوگا جو ٹائم وہ کریں گے. میں زیادہ وقت وہی نہیں دیں گے, سب کو مطلب بتا چکے ہیں. ایک رائٹر کیفے کی ایکٹیویٹی ہے اور میں بتا رہے ہیں بات بہت کوئی بڑی بات ہے, ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ کون کرے. یہ اگر آپ کو بتاؤں کہ کیفے کا پہلے دن جب مجھے خبر ملنے آئے بات ہے پہلے دن انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ رائٹر ایک یہاں پہ ایک کوئی اور جگہ ہونے کے لیے جو کہ ہمیں ملی نہیں ہے, تو ہم وہ نہیں کر رہے کہ وہ لینے میں کامیاب رہے کوئی شہر کے لیے. اور انہیں کا یہ چاہ کہ آپ کو اطلاع کریں کہ میں کو بلائیں بات جو جگہ ہو گئے سب لوگ یہ اسپانسر کریں گے. ہم ان کے کوئی بلا رہے ہیں کہ وہ آگے آئے اٹھنا پڑے. تو اکثر لوگ کہاں سے کریں اگر چاہیں کہ مفتی صاحب خود ہی کچھ اپنے بارے میں ہمیں آغاز کریں, کب سے لکھنا کیا کیسے لکھا, اس کے بعد پھر تو آپ اوپن ہے نہیں کوئی بات چھیڑے کسی نے نہیں چھیڑا. بہت بڑی کمی ہے. آج تو آپ کسی کرٹک کو تو بلایا نہیں, ہم تو سب تعریف کرتے ہیں. بیٹھے خطرناک لوگوں کو بلایا ہے, باقی کرٹک ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, انہوں نے کیریئر رائٹنگ میں کام کیا ہے, یہ سب تعریف کرنے والے جہاں تک فراد اور تکبیر انہوں نے لکھا اور مطلب اٹھانے کا میں نے پاکستان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو پڑھا ہے آپ ان کے 5 کے نام لے. میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ آپ نے مجھے پڑھا ہے. میں نے کہا یہ سوال کرنا میرے لیے اتنا مشکل ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی سے سوال کر لیں کہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. یہ تو میں تو یہ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. ہم ان کے افسانوں سے اپنی اسٹوڈنٹس لائف سے واقف ہیں. میں نے سب سے پہلے ان کا ایک افسانہ جس کا عنوان نام تھا وہ فنون میں پڑھا تھا اور اس کا اثر اب بھی مجھ پر, اس میں بہت اعلیٰ کردار نگارے
اور نفسیات سے بڑی اچھی واقفیت، حتیٰ کہ نفسیاتی بیماریوں سے بھی واقفیت اس افسانے کے اندر موجود ہے. اور یہ البتہ ضرور ہے، کافی بیماریوں کا البتہ ضرور ہے کہ بعد میں 1965 کی جنگ پر افسانے لکھے، 1971 کی جنگ پر افسانے لکھے، ناولٹ بھی ایک لکھا، اور ڈائری اور رپورٹ کارڈ، چہرے، سگریچے، تنگ کے لمحے. ایک بات میں ضرور سے پوچھنا چاہوں گا کسی اور بات پہ بات کرنے کی، کہ ان کا اپنا نام تو چھوٹی ہے پہ ختم ہوتا ہے، لیکن ان کی اکثر کتابوں کا نام بڑی ہے پہ ختم ہوتا ہے. اس پر وہ ضرور روشنی ڈالتے پر رکھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اور ایک دو باتیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ البتہ کہہ کے وہ مجھے اچھی آپ نہیں لگی. یعنی اب جو آپ ملازمت میں چلے گئے اور وہاں جا کے جو کچھ آپ نے مشرقی پاکستان میں دو آپ نے حصے دکھائے ہمیں، ایک ٹریننگ کے دوران جس میں آپ کو لگا کہ وہ محبت کرنے والے ہیں اور آپ کو قریب کرنے والے ہیں اور ہمارے فاصلے بیچ میں نہیں، اور دوسرا وہ جو ہم سانحہ ہوا جس میں ہم الگ ہو گئے. یہ دونوں ایسے نظر آئے اور دونوں کے اندر جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ بھی ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھا ایک افسانہ میرے ذہن میں ابھی گونج رہا ہے اور وہ یہ ہے، اب نام شاید آپ مجھے یاد کرا دیں لیکن اس کا متن جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے، اور یہ ہے کہ ایک مغربی پاکستان کا آدمی ہے اور وہاں پہ موجود ہے، اور زمانہ وہی ہے جب وہاں کے لوگ جے بنگلہ کے نعرہ لگوانا چاہتے ہیں اور لگوا رہے ہیں، اسے راتوں کو جگاتے ہیں، 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات، کئی راتیں گزر جاتی ہیں، اس طرح وہ روز جاگتا ہے اور نعرہ اسے لگوا کے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو تھے بندوق والے یہ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ سرکوبی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو وہاں پہ ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف. تو عین اسی کے دروازے پہ جا کے جب پہنچتے ہیں دستک دیتے ہیں تو جے بنگلہ کا نعرہ لگا دیں. اس لیے وہ جاگا ہوا چاہتا ہے کہ میرا نعرہ سنے اور یہ جائیں. وہ دوسری دفعہ دستک دیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ وہ بندوق سے اسے خون ڈالتے ہیں. تو اب بھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بندوق اکثر فیصلے غلط کرتی ہے. یہ آپ کے افسانے نے کم از کم مجھے سمجھایا ہے کہ بندوق کے فیصلے اکثر جو ہے اب بھی یہ بات یہ اب بھی ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ سے آتی ہے کہ بندوق ہے. اس نے تاجر حکومت کرتے ہیں یا فوجی حکومت کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی 2500 سال پہلے کی بات ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے. اچھا وہ جو آپ کی زندگی ہے اس سے میری 3 جگہوں پہ میں جڑا ہوں. مثلاً 57 آپ کا پہلا افسانہ چھپا اور میں 57 میں پیدا ہوا. ایک شہر جو پنڈی گیب ہے، پنڈی گیب میں آپ 62 اور 63 میں غلطن رہے ایس ڈی او. میں 62 اور 63 میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا اور پنڈی گیب میں پیدا ہوا. اور ایک اور یہ کہ قومی زندگی کے ساتھ لکھنا آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ صرف فرد کے نہیں ہو رہے آتے، اس فرد کو اجتماع کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، اسے زمین کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، اسے ملک کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، اسے رشتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں. اور یہ بات مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں آپ کو بہت اپنے قریب پاتا ہوں. لیکن اس کا تعلق پنڈی گیب سے نہیں. ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں، میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں سیاست کا کام کرنا بچوں کے لیے بالکل منع سمجھا جاتا ہے، منع. اور بہت ہی کہتے تھے کہ یہ سیاست ایک الگ بات ہے، تم لوگ پڑھائی سے کام کرو. تو وہ ایک جسے آج کل ہمارے بچے نرڈس کہتے ہیں، تو ہم لوگ بالکل سیاست سے الگ رہ کر اپنے ایک محدود سی دنیا میں جس میں ادب بھی شامل تھا. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کچھ سیاسی شعور بیدار ہوا یا کچھ قومی امور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بڑا رول آپ کی رپورٹاج کا ہے جو آپ نے 71 کے حوالے سے کی اور جن سے میرا پہلی مرتبہ آپ سے تعلق ہوا. اس کے بعد میں نے آپ کو فکشن بھی پڑھا اور جدید فکشن بھی پڑھا، لیکن میرے لیے آپ کا حوالہ ہمیشہ وہی رہا جو آپ نے قومی حوالے سے لکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اپنے معاصر عہد کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی لکھنے والا کس طرح سے شعور اور بیداری پیدا کر رہا ہے. مطلب میں ایک بہت پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی تھی، میرے پاس وہ ایکسپوجر نہیں تھا زندگی کو سمجھنے کا، تو میں نے کتابوں کی مدد سے زندگی کو سمجھا. تو لکھنے والے کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ شاید خود اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ کہاں کتنی دور مار ہے اور کتنی دور رس ہے اور کہاں کہاں یہ اثر کر رہی ہے.
मेरे लिए हमेशा आपका ये हवाला बहुत मोतबर रहा है। अगरचे आपकी फिक्शन भी मैंने पढ़ी और एक दफ़ा आपसे बात भी हुई कि आपकी ख़ास तौर पर अफसानों में जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है उस पर कई हवालों से रोशनी डाली गई है। ये भी मुझे एक तरह से बड़ा नुमायाँ आपके यहाँ नज़र आया कि माशरती जितने भी समाजी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उनका मरकज़ दो ही हो सकते हैं, या माशरा है या घर है। तो दोनों को आपने अपनी फिक्र का मौजू बनाया, फ़न का मौजू बनाया। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में, फ़िक्री ज़िंदगी में और शौरी ज़िंदगी में आपके काम भी बहुत ज़रूरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पीछे आपको लेके जाती हूँ 16 दिसंबर शाम 5:10 आखिरी खबर, दोनों मुल्कों के फौजों ने बाहमी मुआहदे के तहत हथियार डाल दिए। कमांडरों तो शरीर से जंग खत्म हो गई। ये नहीं कहा गया। जिस वक्त जो खबरनामा था उसमें कहा था बाहमी मुआहदे से हथियार डाल दिए गए। मैं और यूसुफ खबर सुनते ही एक दूसरे को देखते रहे और उसके बाद हम उठे और भाई के यहाँ चले गए और वहाँ से उनके साथ मिल गए और हम सब मिलके रो रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं। तो हमने कहा चलो उस जमाने में कर्फ्यू लगता था, कर्फ्यू लगा हुआ, चलो हम मान रोड पे चलते हैं। और हमें रोता देख के फौजी जवानों की एक हो जा रही थी पैटर्न, उन्होंने भी उसी तरह रोना शुरू किया जैसे हम रो रहे थे। अभी ये एक चैप्टर आता है। इसके बाद मेरे दफ्तर में जितनी खवातीन थी जिनके मियाँ जो डब्लूज हुए थे, बीवियाँ आनी शुरू हुई, जिसमें बुशरा भी शामिल थी। और उन्होंने जलसे किए और कई जलसे किए और उसमें जुलूस भी निकाले। तो भुट्टो साहब ने मैसेज भेजा कि जो खवातीन हैं उससे आके मिले। और आके जब वो मिली है तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें जितना रोना है यहाँ मत रो, मैं दूसरे मुल्कों में भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ और उनको बताओ कि हमारे लोगों पे क्या बीत रही है और हमने किस तरह से हमारे लोगों की तरह POW बनाया। और देखो मतलब ये लफ्ज़ मैंने भुट्टो साहब के मुँह से सुने और मुझे ये हैरानी है कि उन्हें एक औरत की तरह कैसे बोलना है। उन्होंने कहा देखो वहाँ जाके लिपस्टिक नहीं लगानी, वहाँ शॉपिंग नहीं करनी, वहाँ तुम्हें वाकई रोना है, बताना है कि हम अपने बंदों को क्यों वापस चाहते हैं। सब कुछ हो गया, लोग वापस आने शुरू हो गए। हम लोग बॉर्डर पे थे, लोगों को रिसीव कर रहे थे, सब कुछ हो गया। मुफ्ती साहब आ गए। मुफ्ती साहब के बारे में खबर मुझे मिल गई कि उन्होंने रिपोर्टाज लिखा है वहाँ पे। अब मैंने पकड़े क्यों और ये मेरी पकड़ाई में नहीं आ रहा है, मेरी पकड़ में मेरी पकड़ाई में नहीं आ रही है, नहीं मैंने नहीं पढ़ना, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे ये वो मैंने कहा लानत भेजे उस सरकारी मुलाजिम को जिसमें आप 3 साल 2.5 साल अंदर रहे, आपको बोलना है और आपको पढ़ना है बच्चों को चाहना। बड़ी मुश्किल से मुफ्ती साहब तैयार है। नेशनल सेंटर में थी 3 बजे से नेशनल सेंटर का हॉल फुल। अदीबों में कासम साहब से लेकर हर अदीब मौजूद था। जर्नलिस्टों में मीम शीन से लेकर अब्दुल खुशी से लेकर सब जर्नलिस्ट मौजूद, नौजवान मौजूद थे। और 3 बजे जब हॉल फुल हो गया तो मेरी 4 बजे सेशन शुरू होना था। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो फौरन एक माइक बाहर लगाया गया और दूसरे फ्लोर पे हमारा दफ्तर था। दूसरे फ्लोर तक जितनी सीढ़ियाँ थी और ऊपर के फ्लोर तक जितनी सीढ़ियाँ थी सब पे लोग बैठ गए थे। और जब मुफ्ती साहब ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद वो सन्नाटा था कि जो आवाज़ सुनाई दी वो सिर्फ सिसकियों की थी। और वो सिसकियाँ कब तक जारी रही मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जब खत्म होने के बाद सब जा रहे थे तो सब सीढ़ियों के ऊपर भी लोग मुफ्ती साहब को ऐसे ही रुखसत कर रहे थे जैसे इनके सामने पाकिस्तानी फौजों ने हथियार डाले। सबके मुंह नीचे थे, सब दिल बर्दाश्त थे। और ये मंजर मुझे आज तक नहीं भूलता और मुझे वो तहरीर आज तक नहीं भूलती। और मुझे पता नहीं चलता कि मुफ्ती साहब ने वो तहरीर इतने हौसले के साथ कैसे पढ़ी,
कि हम अब सुनने वाले हौसला न कर सके, तो लिखने वाला और जिसमें बीती थी सब कुछ है उसने कितना हौसला किया। और उसके साथ एक और फिक्रा में जोड़ दूँ, मेरा भाई वो डब्ल्यू था, क्योंकि वो फैक्ट्री जो थी ऑर्डर्स फैक्ट्री उसके चीफ थे, तो उन्होंने मुझे 13 तारीख को फ़ोन किया, हम लोगों को सबको 13 तारीख को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम फ़ोन नहीं कर सकेंगे, अब इसको आप तस्वीर के बताइए, क्योंकि हम लोगों को कॉन्टिनेंटल होटल में शिफ्ट किया जा रहा है और हम लोगों का कोई रास्ता नहीं होगा। और हमने ये देखा है कि उसके सामने शामियाने लग रहे हैं और कैमरे लग रहे हैं, क्या होना है हमें ये नहीं मालूम। और 16 तारीख की रात शाम की बात मैंने आपको बता दी कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने क्या किया। ये अलग बात है कि उस बात को आज मोदी साहब अपना के गुरूर से कहते हैं, किताबों में लिखी गई बात को नहीं माना और हमारे सियासतदानों ने नहीं माना और हमारे उन पुलिस और आर्मी के लोगों को नहीं माना। बल्कि मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन जिस दिन पाकिस्तान जनरल नियाज़ी आया और उसको लोगों ने खून पेश किया। ये हमारे लिए शर्म का मकाम था और लोगों ने उसको खून भी पेश किया। तो हमारे शर्म के मकाम बहुत आए उसके सामने। नौकरी के हवाले से भी, सरकारी नौकरी में भी हमारी क्या मुलाकातें हैं उसके बारे में भी लिखा। ज़िंदगी में मोहब्बतें बहुत कम इन्हें भी मिली हैं, मुझे भी मिली, लेकिन ये कि मोहब्बतों के बारे में कम लिखा। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें तो उसमें बचपन की मोहब्बतें भी और बाप की मोहब्बतें भी और इशरत मोहब्बत। ये बाप छपता है कि वो दमिश्क का लाहौर के मशहूर जरीदे में जो ताज़ा तरीन शुमारा है उसमें दो मीनार। अच्छा, तो अब जो ताज़ा तरीन है अल-हबरा का शुमारा, उसमें मैं ढूंढता रहा कि मुफ्ती साहब कहाँ आप बीती इनकी है और सारा कौमी तारीख के बारे में, चाहे कि पाकिस्तान के बारे में, हमारे बारे में। तो ये कि इनका ऐसा वस्फ है कि वो जो मुझे दूसरे लिखने वालों में नहीं मिलता, ये भी मैं नहीं कहता कि कम कर, यानी अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर ये कौमी तारीख के धारे में गुम कर दिया है। और जो ज़्यादा बातें अब तक हुई हैं कि आपकी और मशरक़ी पाकिस्तान में मशरक़ी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना उन पर जो तय है, लेकिन मैं दो ऐसी बातें करना चाहता हूँ, आपको शरीक करना चाहता हूँ कि नहीं कि जो अदब से ताल्लुक़ है। मसलन खुश नसीबी से मैं आर्या महल्ला में भी रहता रहा। उस ज़माने में मनु भाई भी रहते थे, आफ्ताब इकबाल शबीर भी रहते थे, चंद एक और दोस्त भी। तो जब भी चाहे मनु भाई को सिगरेट कम हो गए तो सिगरेट दोष था तो भाई चलते हैं सिगरेट को दुकान। जब उसे पता चलता था मनु भाई है कारण चलता है ताबीर में, तो वो कहते मसूद मुफ्ती भी यहाँ रहते हैं। यदि इस कदर सुना वहाँ के क्या आप जा चुके हैं वहाँ से, लेकिन आर्या महल्ला के लोग आपको भूले नहीं थे। वो दुकानदार लोग आर्या महल्ला अबरी रोड तो वो खैर आप आर्या महल्ला 2-3 जगह है। अच्छा, तो यहाँ का आर्या महल्ला फैमिली के साथ। हाँ, तो वो आपकी यादें वहाँ पहली बार तो आपको पढ़ने से भी पहले कि जी मसूद मुफ्ती साहब भी जा रहा था। अच्छा, दूसरी लेकिन लोगों को पता ये यदि मैं भी मुझे नाश्ते इस तरह किताबें मिलती कि आपसे कमिश्नर रावत के लिए जुड़े तो वज़ीर आला आदिफ राफे साहब आए पंजाब हाउस पे ठहरे थे। उसी मीटिंग से आए तो एक एहतियात करने वालों का गिरोह आ गया और उसने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दी
اور بہت ہی معدوم ٹھہرایا انتظامیہ کو کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ فتح خان بندیال اس وقت تھے چیف سیکرٹری پنجاب کے، وہ تھے۔ اب وہ پرانے زمانے کے انگریزوں زمانے کی جو تربیت چلی آتی تھی اس طرح کی بیوروکریسی تھی، تو وہ بہت مزہ ہو رہے تھے، لیکن لوگ جب یہ بات کر رہے تھے تو حنیف رامے صاحب عید کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کیا شکایت ہے، جو کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب قدر انہوں نے ہر شکایت پہ کہا کہ لوگوں کی شکایت ٹھیک ہے۔ رامے صاحب نے جو باتیں کر سکتے تھے کہ ہمیشہ سیاستدان اچھا ہو یا برا ہو، وقت ہی اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ گھر چلے جائیں اور بعد میں ایسی جگہ نہ آیا جائے جہاں پھر یہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے مسئلہ سنیں۔ تو جو ہی مفتی صاحب اپنے کمشنر آفس گئے، لوگ گئے چیف منسٹر کے پاس، کھلی کچہری فتح خان وہ کھلی کچہری تھی، ایسے نہیں اچھا مطلب وہ خاص کچہری کر رہے تھے۔ اچھا اب وہ فتح خان بڑے آپ بڑے نظم تھا، وہ کہتے کہ جی کمشنر کا یہ کام ہے، وہ ایجوکیٹر کے ساتھ مل گئے، اردو نے کسی ایک بات کی بھی یہ نہیں کی کہ بھائی کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں، یہ تک نہیں کہا، ہر شکایت کے ساتھ کہا کہ یہ بات تو ہے ٹھیک ہے۔ تو ایسا آدمی تو ایسا تو غصے میں تھے۔ اب رامے صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے مرحوم کہ وہ مسکرائے، کہتے کہ بجائے خان میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں مفتی صاحب کو، میں جانتا ہوں، کوئی بات آگے بڑھنے نہیں دی ہوئی۔ اور یہ میں نے ایک جھلک دیکھی ان کے انتظامی سربراہ راولپنڈی جمعیت کے کمشنر کی حیثیت سے کہ یہ یوں لگتا تھا کہ انہیں خود گھیر کھا کے لائے کہ حکومت کو بتایا کہ کیا خرابیاں ہیں۔ اس وقت ایکسپلینیشن کام دی گئی، اب آپ نہ کریں۔ اب حنیف رامے جیسا چیف منسٹر نہیں ہے، اس لیے اب ہو سکتا ہے۔ مسعود مفتی کو میں نے زیادہ نہیں پڑھا، افسوس ہے مجھے اس بات کا، لیکن جتنا پڑھا ہے اور جتنا سنا ہے اس پر میں یہ بڑی کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ مسعود مفتی پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ادیب ہے، نہ صرف آج بلکہ رہیں گے آئندہ سامنے میں بھی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی سوشیو کلچرل ڈاکیومنٹیشن اپنے دور کی یہ کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں، جس باریکی سے، جس خوبصورتی سے، جس حساس پن سے انہوں نے بڑے اہم موضوعات پہ لکھا ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی اہم دستاویز۔ اور ایسے گھر جس میں سیاست بالکل ڈسکس نہیں کی جاتی، ان کو تو ضرور ہی پڑھنا، بس یہی۔ اور مجھے بڑی شدت کا انتظار ہے آپ کی نئی کتاب کا، کیونکہ اس کے میں چند چیپٹر سن چکا ہوں اور مجھے بہت دلچسپ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی چھپ جائے۔ چلیے جب یہ لگے میری سمجھداری کتاب ہے جی نہیں، میں نے تو بس یہ حدیث سطح پہ ان کو اکنالج کیا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ جتنے معصوم یہ شکل سے لگتے ہیں اتنے مطلب یہ جس طرح یہ نہیں، جس طرح یہ ان کو جل دے کے اپنا اسکرپٹ، یعنی ایجنٹ 007 والا بھی کچھ کچھ جی، وہ مجھے لگتا ہے کسی کو یاد نہیں آیا، جس طرح یہ اپنا چہرے کا اسکرپٹ چھپا کے وہاں سے لے کے آئے، وہ تو میں نے اس کے اختتامیہ میں پڑھا چہرے کے بعد جو وہ دیکھیے نا اکثر یہ تصویریں ہیں، تو وہ ضرور ہمیں بتائیے گا جب آپ بولیں گے، جس طرح وہ ٹوتھ پیسٹوں میں سامنوں کے اندر چھپا کے، بلکہ ہینگر پہ تو میں بھی حیران رہی کہ ہینگر میں بھی اسکرپٹ پہ چھپایا جاتا ہے چہرے کی، اس کو جیسے بچا کے لے کے آئے۔ مفتی صاحب کو کے متعلق اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو میری ذاتی ایک ریڈنگ تھی، ایک مشاہدہ رہا آپ کے بارے میں، ایک تو یہ کہ ایک مستقل فیچر ہے آپ کی شخصیت میں، وہ ہے آپ کی
गहरी और पुरस्कार मुस्कुराहट। इसके पीछे जितना भी तख्लीकी अमल है, तख्लीकी सफर है, उसका जिक्र यहाँ सबने कर दिया। मैंने आपको जितना पुरस्कार और गहरी मुस्कुराहट जो मुस्लिम फीचर भी है, ये भी नहीं है कि वो कभी कभी जो है दाएं बाएं हो जाता हो। मुफ्ती साहब ये आपकी इस बात, ये आपकी जो तख्लीकी सफ़र है, अफसाने का सफ़र, उसमें ये बात जो मैं महसूस कर सकी, उसको बहुत पसंद करती रही। और हमारे लिए हम लोग नए जो लिखने वाले थे, अब तो नए नहीं रहे, लेकिन गलत दौर में इंसान नया ही होता है अफसाने के हवाले से, कि आपका जो मौजू है, ये जो आपका जो आपका अफसाना है, वो ग्लोबल और लोकेलिटी, यानी कि आप मकामियत और यूनिवर्सल सिरों को जोड़ कर लेते हैं। यानी आप अगर ग्लोबल पर हैं, अगर आप कैनवस आपका ग्लोबल पर आ गया है, तो इसका मतलब है वो मकामी मौजू भी है। अगर आप मकामियत पर मौजूद हैं, तो वो एक लिहाज से इतना गहरा और वसीर मौजू है कि वो ग्लोबल पर आता है। तो इस लिहाज से आप दोनों तकाज़े पूरे करते हैं। और ये बहुत से लिखने वालों के लिए भी इसमें एक इंस्पिरेशन ये भी है कि आपका जो उसलूब है, वो कहीं पर भी इस तरह का गड़बड़ नहीं है कि पता न चले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे आपकी अफसाने चाहिए। लेकिन अभी कुछ बात प्रोफेसर फतेह मोहम्मद साहब ने आपकी प्रोफेसर फतेह मोहम्मद साहब ने जो आपकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का कोई जिक्र किया है, उससे पहले आप जो जिक्र कर रही थी और बाकी उसके उससे फिर हमेशा बात की जो फिक्शन आपने लिखा है और उसमें सारी अब ये वही बातें हैं ना कि इस तरह की बैठक में बैठने से ज़्यादा बेहतर डिस्कस हो सकती है, क्योंकि अभी जो रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्च के जो ट्रेंड्स हैं, उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म ने हिस्टोरियोग्राफी को चैलेंज कर दिया है। जो न्यू हिस्टोरिकल मेथड्स आए हैं या न्यू हिस्टोरिकल हिस्टोरियोग्राफी का जो तरीका है, उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप बीतियाँ, ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज, लेटर और ख़ास तौर पे फिक्शन जो पर्टिकुलर इवेंट्स के पस मंज़र में लिखा जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल टेक्स्ट से ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि इन सारे सोर्सेज से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को कंपेयर करें, देन यू विल बी एबल टू अराइव एट द 1857 के बारे में यही सोर्सेज हैं, सब के बारे में रीराइट कर रहे हैं 1857 और अभी पार्टीशन 1947 की भी जो लिखी थी, और अब जो तीसरी जो 1971 और 72 जो फॉल ऑफ ढाका पर भी लिखी गई, वो जितना फिक्शन है वो बाहर लिखा गया, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में लिखा गया। अब इसमें जो सारी ये हम सारी जो हमारी उर्दू की वॉइसेस हैं, ये उस कंटेम्प्रेरी रिसर्च कैनन और प्रिंसिपल्स में कहीं बंद है, वो आवाज़ें उतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही जो हम आगे रिसर्च को लेके जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो इन्होंने किया है। अभी ईश्वर आपका कह रही थी ना कि ये नहीं नज़र आते और वो सारा सोशियो कल्चरल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नज़र आता है, शायद कोई लिखने वाले को भी पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अभी। वो किसी भी कंटेम्प्रेरी पोस्ट मॉडर्निस्ट न्यू हिस्टोरियोग्राफी में वो एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट के बेस पे आप जो ऑथेंटिक हिस्ट्री लिखी हुई है उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं उसके रेफरेंस से। और वो कहते हैं कि ये जो हिस्ट्री लिखी जाती है ना, उसमें वॉइसेस को, सच्चाई को और जो असल बात होती है उनको डेलिबरेटली, इनडेलिबरेटली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली उनको दबा दिया जाता है। वो अगली नस्लों जो हम आजकल रो रहे हैं ना कि हमारे पास वो हिस्ट्री है, वो इसीलिए नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो हमेशा 30% ट्रूथ बताती है, बाकी नहीं बताती। तो अभी तरीका यही है कि जो लास्ट 70% ऑफ ट्रूथ है वो इन चीज़ों से रिकवर करें आप, ऐसा ही और फिर उसको करें। तो इस लिहाज से तो मतलब मेरी जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है कि मैं जाके पढ़ूँ, अपने दोस्तों को भी कहूँ कि वो पढ़ें, जरूर पढ़ें और सारा पढ़ें। अयूब खान फतह के बाद उसमें कराची में जो खुद बाहर वो कत्ले आम किसी औरत से उसका जिक्र नहीं, लेकिन फैज़ की मुसीबत आ गई है, वो काश्मीर की मुसीबत आ गई, वो दोनों दिन में आप देखें तो वो हिस्ट्री है जो इस तरह की हिस्ट्री की किताबों से जो डायनेस्टीज को बयान करती है कि नहीं। और 47 का जितना फिक्शन बाकी चीजें पहले हिस्ट्री मानते नहीं थे,
पहले आज तक जो एक मोनोपोली थी ना, फिक्शन को, बायोग्राफी और लेटर राइटिंग को हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं माने जाते थे कि ये तो फिक्शन है, तो उसकी जगह पे हिस्ट्री लिखी जा रही है, वो हिस्ट्री ठीक नहीं जो बेस्ट और रिपब्लिक करना चाहता है, ये सब जो है ना कि कुछ हम सुने पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे वेस्टर्न इस्तिलाहात यहाँ तक हमारा तलक है, पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मॉडर्निज्म में मटीरियलिज्म आ गए और मेटाफिजिक्स खत्म हो गए। पोस्ट मॉडर्निज्म में मेटाफिजिक्स तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म तो हमारे तो मेटाफिजिक्स कभी गई नहीं। और जिस कहानियों को जिस तारीख की आप बात करते हैं, शादी की गुलिस्तान गोस्तान में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो देखे, एक आयात देखे, तो वो सारी तारीख ही आपकी और आज तक जितने लोगों कोई किसी ने लिखी नहीं थी उसको अब वो लोग लिख रहे हैं, उसकी वहाँ पे उन्हीं किसी इलाके के लोगों को नाम। जी मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान को बहुत करीब से दिल के साथ और एक बहुत नीयत के साथ देखा। मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको उसी तरफ धकेला जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो आप इस पर बात करें, और दूसरा आपने ये कहा कि रस्तू ने या किसी ने कहा था ताजिर के हवाले से, तो उस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो मॉडल इस वक्त हम सब मुसलमान हैं, तो मॉडल शख्सियत या हजूर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बेचारों को फ़ायदाशीन है। तो वो सब के सब लोग जो थे वो ताजिर थे। उन्होंने एक ऐसा जदीद माशरा जो था उस दौर के अंदर तश्कील किया, और एक बात की गई सियासत की। ये मुल्क जो है ये सिर्फ सियासत के ज़रिए ही कायम रखा जा सकता है, और जो लोग ये समझते हैं सियासत को अपना कट्टर समझते हैं और सियासत को ये समझते हैं कि ये कोई ऐसा शजर ममनूआ है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर कायम रखना है तो वही एक वाइब्रेंट, एक यूनाइटेड पॉलिटिकल फोर्स जो है वही इस मुल्क को कायम रख सकती है। और आपने तो बहुत करीब से इस पाकिस्तान को टूटते हुए देखा कि जब पॉलिटिकल फोर्सेस डिवाइड हो गई, और पाकिस्तान तो उसी दिन डिवाइड हो गया था जब दोनों सूबों का मैंडेट जो था, कुछ लोगों ने मजीद को मैंडेट दे दिया, कुछ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैंडेट दे दिया। तो ये जो पॉलिटिकल जो लोग पॉलिटिकली हमें शूट करते हैं, हम उनको अच्छा कहते हैं, जो नहीं अच्छा समझते हैं वो उनका बुरा कहते हैं। और एक बात करें, अदब पे बात करें, सियासत पे बात नहीं, मैं वही अदब के काम के हवाले से, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़रूर जो है वो अपनी जो पाकिस्तान की सामने फॉरम नहीं है, ये फॉरम नहीं है, ये फोरम नहीं है आपकी इस बात। और अब जो बस सिर्फ इतनी बात होगा कि खुलफाए राशिदीन और हजूर की तिजारत की जो बात की है, जब वो हुक्मरान हो गए, सियासत में आए, तो फिर याद रखिए कि हजरत अबू बकर से कहा कि उधर को रोटी रोजगार करना है, अब आज से खत्म, तुमने आप तिजारत नहीं करती। तो जब वो मनसब हुकूमत पे आए तो उन्होंने सियासत छोड़ दी। अब हमारे यहाँ खराबी ये है कि सियासत में लोग आप सो तो चलवा मुफ्ती साहब ने भी आपने मिसाल वो दी थी 2000 साल पहले, आपने कहा था अरिस्टो या प्लेटो, तो प्लेटो था जिसने कहा था, और उसने अपने यूटोपिया के लिए उसने कहा था कि जो रूलर हुक्मरान से ही हो सकता है, दैट इज द फिलोसफर किंग। और उसके नजर में उससे कहा था कि ना कि मतलब तजारत पेशानियाँ। तो अब आपने ये हम आपको स्टार्ट दे रहे हैं, आप बताइए कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में जो भी आप जी रहे हैं सब इसमें आपको फिलोसफर किंग मिला, आपको स्टार्ट अपनी रिपब्लिक थी उसमें ये सब लोगों के पास वोट के लिए लेकिन लीडर क्लास तो इसलिए हम उन सारी चीज़ों को यहाँ मुंतबिक नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, मेरा भी एक सवाल है, क्या वाकई में आपको कभी किसी ने नहीं छेड़ा? जी कितने लोगों ने अभी ये रजिस्ट्रेशन को बताऊंगा आपको क्या
तबकाती हो, लोगों के हालात हों, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी नजर आता है। और यही देखा गया कि एक वक्त में आपको इतना असर हुआ आपके मुताले का कि आप अफसानों से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी आप जाने का सोचा और उसके हवाले से भी आपने काम किया। तो हमने पूरा एक ओवरऑल आप बताएंगे आपकी पूरी डेवलपमेंट और फिर पॉलिटिक्स की, फिर जमात का एक जमात बनाना और फिर आगे काम करना। हम चाहेंगे कि आप पूरे अगर मुफ्ती साहब से कहें कि ये बचपन से अगर स्टार्ट लें कि कब आपको लगा कि आप लिख सकते हैं, जिसमें वो छेड़ने की बातें भी, कैसे ये छेड़ने की बातें भी आएंगी, कहाँ से आप शुरू करें तो ज्यादा। देखिए किस्सा ये है कि मैं How did you become a writer? You are a bureaucrat. How did you become a writer? पहला पत्थर मारने वाला तो कोई नहीं, इकट्ठे पथराव करेंगे तो मैं किसी तरह निपट लूंगा। लेकिन मैं बैठा भी कुर्सी पे इसीलिए था, लेकिन अपने बारे में पहले तो ये बात सुनना मुश्किल है और फिर अपने बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि क्वेश्चन अगर हो तो मैं उनका आपने क्वेश्चन शुरू यहीं से कर देता हूँ। किसी ने एक आदमी से पूछा था कि आपकी जात क्या है, तो कहते कि जी हम थे तो जुलाए, लेकिन जमाने ने मार मार के सैयद कर दिया। तो मैं राइटर बनने का, राइटर के तौर पे सोचने का तस्वर का ख्वाब ख्याल में भी था बचपन में। यही था कि हम बिल्कुल जुलाए थे। इसलिए कि जब तक आपकी तालीम नहीं होती तो जुलाए ही होते हैं। तो बचपन में हम सिर्फ किताबें पढ़ा करते थे, इसलिए किताबें पढ़ा करते थे कि हर तरफ किताबों का रेला होता था। स्कूल की लाइब्रेरियाँ होती थी, बड़ी वेल स्टॉक होती थी, मिल जाती थी चीज़ें। हर इलाके में कोई पब्लिक लाइब्रेरी लोगों ने बनाई हुई थी, छोटी छोटी लोगों ने खुद बनाई हुई थी। आना लाइब्रेरियाँ उसके अलावा थी, और वो आना लाइब्रेरियों के अलावा हमारे बचपन में मुझे याद है आपने आलिया मोहल्ला में उसकी बात की, ये जो थी ना हमारी लोग जो किराने वाले लोग थे ना जी, पीछे किताबें बैठे होते थे, आप एक आने के किराए को नहीं होते। तो किताबों को उस वक्त हमेशा दौर दौरा था, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो एक था, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक था और पढ़ने वाले बहुत थे। अगर आप हिंदुओं से शामिल कर लें तो वो पढ़ने का यूँ समझिए कि अब हमारे घर में भी किताबें बड़ी होती थी, बोरियों में भी किताबें होती थी, अलमारियों में भी होती थी, लोगों से लेते रहते थे, देते रहते थे। तो वो जो पढ़ने का एक माहौल था नहीं, उसमें सिर्फ पढ़ा करता था, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कभी सोचा भी नहीं था। फिक्शन पढ़ा था बचपन में, फिक्शन पढ़ा था जी, बचपन में फिक्शन पढ़ा था, 10वीं क्लास तक कोई फिक्शन पढ़ा था। मैं पूरी बात शिक्षण पढ़ा आपने 10वीं क्लास तक कोई कौन सा पढ़ते थे? लेकिन फिक्शन छोड़िए, आप देखिए ना 5वीं 6वीं क्लास तक ये किस्सा चार दरवेश और लैला और ये सारी जो जो चीज़ें होती थी, और उस जमाने में बड़ी अच्छी चीज़ थी कि इन चीज़ों के बच्चों के लिए एडिशन लोग बनाए। तो वो सारी जो थी ना, मतलब ये कि जो क्लासेस जो थी हमें उसकी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन उस जमाने में पढ़िए फसाने आज़ाद मेरा ख्याल है मैं कोई 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुका था, 4 की 4 जल्दी। अच्छा, लेकिन ये था कुछ समझ नहीं आती थी, उसमें फारसी बहुत थी, उसमें अशार बहुत थे। मेरा कहने का मतलब ये खाली पढ़ने पे जोर था। और उसके बाद ये था कि हम आगे कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन वाले लोग, मेरे फादर भी और ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग हमारे खानदान में, तो इसलिए ये था कि आपने डॉक्टर बनना है और साइंस पढ़नी है, और हम साइंस पढ़ते रहे। और अब आपके सवाल का जवाब कि वो मैं जब BSc में 3rd ईयर में दाखिल हुआ तो जिस ट्यूटोरियल ग्रुप में मैं शामिल हुआ उसके इंचार्ज प्रोफेसर अमीरा था, इस्लामिया कॉलेज में था, he was the head of the English department, इस्लामाबाद में बना। लेकिन वो
ट्यूटोरियल ग्रुप 1 से मीट करते, वो तो पढ़ाते थे आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, हम उनके क्लास साइंस स्टूडेंट्स उनके क्लास में तो नहीं थे, लेकिन वो 1 से वीक को मुलाकात होती थी, उसमें वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को एनकरेज वगैरह करते होता इसीलिए था। तो वहाँ एक दिन मैंने कॉलेज के हालात पे, जैसे आपने कहा कि मैंने बड़ी गुजारी में कहा ये ठीक कहते हैं, उसी तरह कॉलेज के हालात में एक मज़ाहिया चीज़ थी, तो वो सुनाई। तो हमीद अहमद खान साहब बैठे थे, तो ये इंचार्ज थे प्रेस, हमारा कॉलेज मैगजीन था उसके इंग्लिश के इंचार्ज थे। तो इन्होंने मुझे नीचे उतरने से पहले कहने लगे कि देखो इसमें जो असिस्टेंट एडिटर की जगह है तुम्हें हाथ में लगा देता हूँ। मैं बड़े हैरान हुआ, तो देखिए साइंस का अलग वे, आर्ट्स का कोई पता नहीं था, ना हम पोएट्री पढ़ते थे, ना हम ड्रामा पढ़ते थे, थोड़ी सी नसर पढ़ते थे वैसा। और उसके बाद फिर अपने कॉलेज मैगजीन के लिए लिखना और उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो फिर इंग्लिश सेक्शन में चुने था, उर्दू में भी दोनों में लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो वहाँ रावी में लिखना शुरू किया। इन बिटवीन ये चटान शोरश कश्मीरी का होता था, शेर मोहम्मद अख्तर का होता था, संदील होता था। और उसके बाद फिर वो जो थे मुजीब लाहौरी कराची से नाम निकाला, मतलब ये सारे इसमें मज़ाहिया किस्म की चीज़ें हैं। तो मतलब इस तरह के मैं खुद आया नहीं, लाया गया और इसमें धकेला गया। तो उसके बाद मैंने वो जो मेडिकल पढ़ने का और डॉक्टर बनने का इरादा छोड़ दिया। वो इतना सर को चढ़ा कि लिखना लिखाना जो था, कलम की जो था, क्योंकि उन्हीं दिनों एक आदमी था इकबाल सिंह, राइटर, इसका जर्नलिस्ट, जिसके बारे में हमें पता चला कि इसका वजह आर्टिकल जो है वो 27 अखबारों में ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। मैं बात करूँ 51-52 पैरा। तो इस किस्म के लोग मेरे आइडियल बन गए मेरे, और मैंने छोड़ दिया कि जब मैं मेडिकल बनना ये कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने MA इंग्लिश में दाखिला लिया, और MA इंग्लिश में जब दाखिला लिया तो वहाँ मुझे उस्ताद मिले खाने मंजूर हुसैन प्रिंसिपल से आज। अच्छे, तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि BSc किया हुआ था। कंडीशन मुझे इजाज़त मिली गई चलने को, हम देखेंगे तो ठीक ना हो तो निकाल देंगे, लेकिन ऐसा ऐसा ठीक होता है। तो इनकी वजह से कुछ सेंसिबिलिटी बनी। और जिन चीज़ों को हम पढ़ते थे, हम जिन लोगों को अपने ऑथर्स को पढ़ते थे, मेरा अपना तजुर्बा तो ज़िंदगी का बड़ा महदूद था, लेकिन उनके तजुर्बे बहुत वसीह थे, उनकी तहरीरें तो बड़ी गहरी थी। तो उसके बाद फिर पता चला कि ज़िंदगी क्या है। और मैं तो अभी तक जो कुछ लिखता था वो मज़ाहिया तंज़ो फ़ज़ा की शक्ल में लिखता था। तो जब MA इंग्लिश में चीज़ों को देखा, उनके साथ इंटरडिसिप्लिनरी होता है, थोड़ी साइकोलॉजी आदमी पढ़ते तो उसकी पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें फिलॉसफी नाम ही समझ आए, थोड़ी बहुत पढ़ता है। तो उसके बाद यूँ एहसास हुआ कि ज़िंदगी बड़ी वसी है, इसका दामन नीचे लटका हुआ है, उसका एक चमकीले कोने को पकड़ के आप तंज़ो फ़ज़ा सारी उम्र आप उसी को लटके रहते हैं, बाकी ज़िंदगी से आप बिल्कुल आंखें बंद कर लेते। तो फिर जब मैंने MA का एग्जाम दिया तो उसके फौरन बाद पहला अफसाना लिखा कि 1957 में भी कभी किया है। मिर्ज़ा अदीब ने तहज़ीब में शाया किया, साथ में लिखा, और उसके बाद फिर सिमत मेरी बदलनी शुरू हो गई कि मैं लिखूँगा अफसाना या नॉवल। मज़ाक तो ठीक है, चलता रहेगा वो भी थोड़ा, लेकिन हुआ ये कि 57 में मैंने अफसाना शायद हुआ, 58 में 2 हादसे हो गए। एक मार्शल लग गया और दूसरा मैं सिमत लिखना चला गया, तकरीबन 70। तो अब जो MA के ज़माने में पढ़ा था कि ज़िंदगी को कैसे परखते हैं लिखने वाले, वो अब हालात हमारे मुल्क के ऐसे बदलने शुरू हुए तेज़ी से कि
और मुझे मौका मिल जाए बाल हालात को रिंग साइड सीट पे बैठ के देखने का, कि वो सोचें जो थी बिल्कुल बदलनी शुरू। और यूँ समझिए कि भाई 1964 मेरी पहली किताब जो शायर हुई सरेगाहे वो उसकी थी मज़ाक और आखिरी शायर आखिरी रही। और उसी 2 महीने बाद ये मोहम्मद इजर पहली अफसानों की किताब शायर। तो यूँ समझिए कि बाई दैट टाइम मेरे अंदर से मज़ाक का चश्मा बिल्कुल खुश्क हो चुका था। इस तरह के आज तक मैं एक मज़ाहिया जुमला लिखने के काबिल नहीं। तो देखिए उन सोचों का नतीजा था जो मैं देख रहा था, और जो मैंने एसके के रिंग साइड सीट से बैठ के देखने का और उनके हाथ जैसे बन रहे थे, बाकी सब उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो जो हम देख रहे थे जी, तो वही मेरी अफसानों के मौजूद बनने शुरू हो गए। और मैं सिर्फ आपको सिर्फ सिल्क का डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मैं इस सिल्क में जिसमें जा रहा हूँ कैसे ये सिल्क में आया। तो वो फिर मैंने अफसाने और नावल और इससे सिलसिला शुरू किया, और मज़ा जो था उसको ऊपर से कुछ डाल दी। मैंने क्या ऊपर से कुछ डालना था, वो चश्मे कुछ हो गया। और क्योंकि ज़ेब उस तरफ जाते ही नहीं था, परेशानी मेन ज़ेब में ज़्यादा थी या माहौल इस किस्म का था। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरी सिल्क का डायरेक्शन जो दूसरी किताब थी वो मुझे बाद में माँ की तरह उसने ये बता दिया कि भाई किस तरफ हमने जाना है। तो मैं नावल और अफसाने, मैंने एक नावल छोटा सा लिखा खिलौने, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ अर्से बाद टेलीविजन वालों ने पढ़ा और फिर मंशा जाल से उसके ऊपर सीरियल बनाया। लेकिन इन बिटवीन 2-3 वाक़यात और किस्म के हो गए जो अगेन जिससे मेरी सिर्फ जो थी ना वो बदलनी शुरू हुई, या उसका तयन या डिटरमिन हुआ जैसे भी। वो ये कि जब खिलौने शायर हुआ तो तकरीबन उन्हीं दिनों या उससे कुछ पहले आग का दरिया शायर हुआ। अब आग का दरिया नावल था, ह्यूज नावल था, धमाका था, ट्रेंड सेटर था, हर तरफ से वाह थी। और आग का दरिया ने एक बिल्कुल एक नई सिमत ढूंढ दी। उस सिमत में क्या था जी, तकलीफ तो थी, साथ इल्मियत भी थी और अवाम भी था। तो ये 3 चीज़ें जो थी, और ये मैंने देखा कि ये मेरी सिमत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरी सिमत जो थी, जो मैंने अर्ज़ किया कि जो सोचे मुझे माहौल से तंग कर रही थी, सियासी माहौल, मजहबी माहौल, माशरती माहौल, वो उनकी डिमांड कुछ और थी। उनकी डिमांड ये थी कि उन सोचों को किसी तरह दूसरों तक पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे अफसाना और नावल जो था ये मुनासिब नजर आया। और इसलिए मेरा ईमान जो था उसमें मकसदियत आ गई और इब्लाग, ये 2 चीज़ें जो थी मेरी डिटर्मिनेशन सिर्फ ये थी। लेकिन ये जो आग का दरिया और इसमें लिया, इन्होंने दूसरी सिर्फ खोल दी। उसके साथ 60 से साथ एक और काम शुरू हो गया कि कई नई सिमतें खुलने लगी। तजदीदियत आ गई, जदीदियत आ गई, तजर्बे बेतहाशा शुरू हो गए, और शऊर और लाशऊर और वो सारी चीज़ें मैं बड़े गौर से देखता था। और लोग मुझे कहते थे कि इस तरह लिखो, और मैं सोचता था कि लिखूँ या ना लिखूँ। लेकिन वो है ना पर तबीयत इधर नहीं आती वाली बात थी। वजह ये थी कि मैं इब्लाग और मकसदियत का कायल था, और ये इबहाम लाते थे, ये अलामत लाते थे। इसमें आप जो कहना चाहते थे, दूसरे तक पहुँचाना चाहते थे, तो उस शक्ल में नहीं पहुँचता था जैसे आप पहुँचाना चाहते थे, बल्कि उस शक्ल में पहुँचता था जिस तरह वो इसको इंटरप्रेट करें। क्योंकि बुनियादी शर्त तो ये थी कि साहब अगर लिखने वाला जो है वो एक हायर लेवल पे चला गया है तो कारी को भी हायर लेवल का होना चाहिए, तभी वो समझ सकते। तो उस वक्त मैंने फिर एक शौरी फैसला जो है ना जी, वो यही किया कि मैं अपने से नहीं करूँ। और इसके ऊपर फिर बड़े ताने भी सुनने पड़े, और
लोग ये भी थे कि गलत फैसला है, शायद वो गलत फैसला था उस वक्त नहीं, और उस फैसले की वजह से मैंने एक फैसला तो ये किया कि जिन नावल लिखने से तौबा कर, कि नावल बिल्कुल नहीं। वजह ये है कि सम और अदर की इमेज बन गया था कि जो आग के दरिया के स्टाइल में नावल नहीं है उसको नावल में नहीं है। और साथ अफसाने की प्रॉब्लम ये थी, जदीदियत जब आ गई, शऊर लाशूर और बातन ज़ाहिर, उन चक्रों में अफसाने में भी ये आ गया कि अगर आपने अलामती अंदाज में उस अंदाज में नहीं लिखा तो अफसाना है ही मतलब शुरू हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता अगर एक छपता है सिलेक्शन 50 साल का, तो मैंने देखा कि बाद सिलेक्शन जो है वो सिर्फ जदीद अफसानों के और बाद जो है वो बिल्कुल पुराने अफसानों के यानी रवायती बयानिया था। तो मुझे कुछ वो ज़माना याद आता था जब मैं पार्टीशन से पहले रेलवे स्टेशन पे हिंदू पार्टी और मुसलमान पार्टी की आवाज़ सुना कि किस्सा ये है कि इतनी सख्त डिवाइड हो गई है जदीदियत और दूसरी के, मैंने कहा कि बेहतर ये है कि एक कॉन्शियस फैसला किया जाएगा। उसलिए फिर मैंने यही कॉन्शियस फैसला किया कि ये जो है मैं मकसदियत और इजलास के रास्ते से हटूंगा। उसकी वजह ये थी, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपने हमने पूछा था कि सरकारी मुलाजमत जो है ये आपने किसी और रंग में बात की थी कि सरकारी मुलाजमत को नेगेटिव अंदाज में, मुझे वो बड़ी पॉजिटिव लगी, साबित हुई इस तरीके से कि सरकारी मुलाजमत में जो कुछ देखता था वो अपने सिर्फ में जाने के लिए, उसको जारी रखने के लिए मुझे लिखना भी वैसे ही पड़ता था। और उस लिखने के लिए मैं इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्ट्रैक्ट रूल्स की वजह से इसमें अखबारों में तो नहीं लिख सकता था, तो लिटरेचर मेरे लिए एक ऐसा बहाना बन गया जिसमें जो कुछ मैं कहना चाहता था किसी न किसी शक्ल में और वो कि बिलाव मकसदियत से गैर पूरा नहीं हो सकता। तो वो फिर यह यूँ कहिए कि वो ज़माने मारी सहीद करने वाली बात है कि वो प्रोसेस जारी था। तो हमारे ईस्ट पाकिस्तान चल रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान गए तो वहाँ जो कुछ देखा वो लिखने के लिए बेचैन था। सरकारी मुलाजिम था, जो देखता था वो लिख सकता नहीं था। यहाँ जब आते थे लोग कहते थे कि साहब ये आप बातें गलत कर रहे हैं, ये तो ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह सख्त सेंसरशिप थी कि लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त जो थी अफसाना तो से जहाँ तक हो सका मैंने काम किया, लेकिन वहाँ पहला मौका था कि मुझे ख्याल आया कि रिपोर्टाज ऐसी सिंफ है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, जो मेरे ठप की हो सकती है। चुनाचे पहली मैंने जो थी चेहरे रिपोर्टाज की, ये सिर्फ 3 दिन का रिपोर्टाज थी। जब ढाका का पार होगा और उसकी जब पजीराई हुई तो मैंने वो दूसरा हिस्सा जो था रिपोर्टाज का, हम नफस के नाम से, कि वो जो कितना अर्सा का स्टे था 8-9 महीने का, उसके बारे में मुफस्सल लिखी। और उसकी पजीराई तो अकेडमी ऑफ लेटर्स से भी हुई, इन्होंने मुझे हिजरा अवार्ड दिया। लेकिन मैंने तो रिपोर्टाज लिखा तो सफरनामा इसलिए कि उसमें जो हेडिंग्स और वानात थे उसमें कई शहरों के नाम मैंने खाते एहतियात का लिखा। सही है कि मैं सफरनामा मैंने आज तक अभी तक नहीं लिखा, ना मेरा लिखने का इरादा है। तो आपने मेरी किताब को डाउनग्रेड कर दिया तो मैं इनाम नहीं लेने आपके फाइल पे होगा वो खान आरिफ साहब ने मुझे टेलीफोन के ऊपर ठंडा किया और खत लिखा, वो भी आपकी बात है कि उन्होंने ये कहा कि नसर का इनाम है, ये सेंट्रल अदर का इनाम है।
नहीं मतलब कि सफर तो आइए आप सामने, हमने तो नसर का इनाम दिया है, तो इसलिए आप तो इनाम तो मैंने ले लिया, लेकिन आपके रिकॉर्ड में एक मुस्तकिल कच्ची मौजूद है कि मैंने जो किताब लिखी है वो आपके रिकॉर्ड में वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद किसी चीज़ को जारी रखते हुए मैंने रिपोर्टाज को जब देखा कि ये मेरे टप की चीज़ है, तो अगर मैं नावल लिखूंगा तो मुझे नावल आपके तैयार है कि लिखना पड़ेगा, वरना उसको पढ़ने को तैयार नहीं होता है, उसका जिक्र करने को तैयार नहीं। तो रिपोर्टाज का जो जैसे जैसे हालात चल रहे थे उनको भी मैं रखना चाहता था। तो मैं 94 में रिटायर हुआ और मैंने वो चीज़ें जो पहले नहीं लिख सकता था सरकारी मुलाजमत की वजह से, उसके ऊपर कॉलम्स लिखने शुरू कर दिए डॉन में, हमारे वक्त में। और उस वक्त महमूद रहमान कमीशन को शायद नहीं हुई, ये 28 क्रिसमस दबाए रखी गई। 94 में रिटायर, तो आखिरी दिन जो था इंडिया में शायद होनी शुरू हुई, और जब 20वीं सदी का आखिरी दिन था तो मजबूरन यहाँ भी उसको डी-नोटिफाई कर दिया गया, शायद नहीं की गई, डी-नोटिफाई कर दिया गया उधर कैबिनेट डिवीजन में रख दी, जहाँ पर नोट्स की इजाज़त नहीं थी, फोटो कॉपी की इजाज़त नहीं थी। तो मैं जो ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी जो लिखने की सिमत है वो डिटर्मिन हुई है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एक मैं सरकारी मुलाजिम था, उनके बात नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि मैं अलामती अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहता था, मैं उनके खिलाफ में बिलीव करता था जो मैं महसूस करता हूँ किसी तरह लोगों को बचा दिया जाए। उसके लिए पहले अफसाने का सहारा दिया, थोड़ा यानी नावल का छोड़ दिया, मज़ा वैसे खुश्क हो गया, अफसाने का चल रहा था लेकिन अफसाने का अपना दामन जो है वो कम होता है। तो इसलिए रिपोर्टाज के ऊपर मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू किया। और जब ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया हुई और उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आ गया और मैंने देखा 2011 में जो मैंने चेहरे लिखा था 1974 में 3 दिन की कहानी, उसको एनलार्ज करके अब तो 2011 तक लिखा है, ताकि वो सारे हालात जो देखे हैं किसी न किसी तरीके से कवर हो गए। तो इस कंपल्शन की वजह से मैं रिपोर्टाज की तरफ दिन ब दिन ज़्यादा आता गया, नावल को छोड़ दिया, मज़ा ख़त्म हो गया, अफसाने की तंगदामनी की वजह से जितना फ़ायदा उठा सकते थे उठाया, और बाकी अब मैं ख्याल यही है कि ज़्यादा रिपोर्टाज की तरफ कंसंट्रेट करूँ। और चूँकि ये एक ऐसी सिंथ है जिसके बहुत वसी इम्कानात, और इसकी तरफ अभी पूरी तवज्जो की बात छोड़िए, कहाँ से अंग्रेज़ी के ज़रिए हम तक ये पहुँची। अभी तो इसकी हम तस्कीर व तानीस के ऊपर भी छड़ रहे हैं कि रिपोर्टाज को ज़क्र है या मुहन्नस है, और क्या फलां चीज़ रिपोर्टाज है भी या नहीं या। तो इसलिए अभी इसका जो खत खाल है उनका तयन होना है। तो यूँ समझिए कि मैं इसका जो अनचार्टेड लैंड है मैं उसको चार्टर उसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हम जो वालिद साहब ने जिक्र किया, तो ये जो है 2 मीनार, ये भी कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग जो मैंने अर्ज किया था आपसे 1964 में। 1958 के बाद जो हालात देखने शुरू किए उनको किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं तनवीर कर सकूँ। तो ये जो है 2 मीनार भी उसी की एक कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग, यानी मेरी सारी सोच का मैं तसलसल तो नहीं कहूँगा, मैं एक ऊपर एक ही सोच रही है, क्योंकि मुल्क की मजबूरियाँ एक जैसी ये हालात। अभी आपने जिक्र किया था यहाँ आजकल के ज़माने का है, तो मैं इतना कमेंट ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरे ख्याल में जिन लोगों ने मुल्क तोड़ा था और
मैं अपना आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे मौजूद हैं। वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शक्ल में आज तक इक़्तिदार से वाबस्ता है। नतीजा ये है कि हमारे अंदर कौम में और समझदार लोगों में ख़ास तौर पे एक झिझक है कि वो इस मौजू पर बात ही नहीं करते। सही बात। इस मौजू पर अब मैं आपसे असलूं की किताब चेहरे जो थी जब शाया हुई थी उसके ऊपर तबसरे लिखे गए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1911 में जब इसका वो पोर्शन ऐड किया और बाकी जो इन बीच में होता रहा, तो इसके ऊपर जो तबसरे लिखे गए उसमें बड़ी मजेदार बात ये थी कि जितने भी तबसरे लिखे गए वो सिर्फ पहले पोर्शन के ऊपर थे, यानी फॉल ऑफ ढाका के ऊपर थे। बाद के हालात के बारे में कोई उसको टच भी करना नहीं चाहता। एक दिन एक साहब मेरे पास आए, स्टूडेंट थे, तो वो कहने लगे जी कि मैं स्पेशलाइज करना चाहता हूँ अपने थीसिस में भी और अपने मशरक़ी पाकिस्तान के। तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो आप अपने यूनिवर्सिटी वालों से पूछे कि उसके अप्रूव भी करते हैं, और फिर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर आप मेहनत करके लिख भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उसको अपना तो पढ़ेगा कोई नहीं। अगर कोई पढ़ेगा तो उसको एक्नॉलेज कोई नहीं करेगा, उसकी बात कोई नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल एक गुमनाम रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने फिर आइडिया। तो अब मेरी कंपल्शन जो है वो 2-3 कंपल्शनें मिल के एक सरकारी मुलाजमत, दूसरा जो देखा उसको किसी ना किसी तरीके से कन्वे किया गया। क्योंकि मैंने जो लिटरेचर अभी आपने जो जिक्र किया है कि जो तहरीरें हैं गैर हिस्टोरिकल तहरीरें, असल हिस्ट्री में तो बड़ी सही बात है आपने जो कहा। तो हमने जो अब देखिए ना ईटनफील्ड इलेक्शन, लेकिन उसके नावलों से हमें उस वक्त हिंदुस्तान का पता चलता है, थॉमस हार्डी के नावलों से हमें पता चलता है इसको क्या था, और लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में वर्ल्ड वॉर पर ये सारी चीजें। जी हाँ, रशियन नावल जो है, फ्रेंच नावल जो है, रशियन तो खास तौर पर, तो वो लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को कन्वे करते रहे। और मैंने ये देखा था कि हमारे यहाँ नजरें चुराने का एटीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है, बल्कि समझदार लोग तो बात ही नहीं करते उसके बारे में, यानी उस माहौल के बारे में, उन वजूहात के बारे में, उन नताइज के बारे में जो हमने सबक किए, उन किरदारों के बारे में जिनकी वजह से ये सब हुए। तो मैं वो किसी न किसी तरीके से कन्वे करना चाहता था, और बस ये मेरी सिर्फ जो है ये ड्रमें इस तरह होती है जैसे घोड़ा को लगामों में आप एक करते हैं। अब पता नहीं मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया या नहीं, अच्छे सवाल नहीं। आप जो रिपोर्टाज का कह रहे हैं कि इसके से डिटरमिन होना, ये भी तो डिपेंड करता है कि लिख कौन रहा है। असल बात है अगर कोई जर्नलिस्ट लिखेगा वो एक ब्लैंड और फ्लैट, चलिए अभी मेरा आप लिखेंगे तो नहीं उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक किसी को अंदाजा नहीं हुआ मैं क्यों लिख रहा हूँ। वो शुरू किया है मैंने उस जमाने से जब मैंने होश संभाला 38, 37। मैं एक बात की आपको कानून में सेकंड वर्ल्ड वॉर का जमाना देखा, पाकिस्तान मूवमेंट देखी, पाकिस्तान बन गया देखा। पाकिस्तान बनने के बाद जितनी चीज़ों की डिस्टॉर्शन हुई है वो उससे पहले हुई है। अंग्रेज के अपने तरीके थे, वो अंपायर का सीधा, लेकिन उन्होंने आपको गुड गवर्नेंस दी हुई, गुड गवर्नेंस दी हुई थी। उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्डक्ट रूल में उनको इतना अच्छा ऑफिसर बनाया हुआ था, इस किस्म का किरदार दिया हुआ था। आपने ताजरों की बात की ना, उनके इधर गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्डक्ट रूल देखने वो ताजे जो थे वो और किस्म के ताजे थे, वो इंसान को इंसान समझने वाले ताजे थे। हमारे ताजे इंसान को बेचने वाले ताजे। तो ये जमीन आसमान का फर्क था। तो जो ब्रिटिश देश थे उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल, मतलब ये सीधी बात थी कि वो हर जगह
लश्कर कशी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गुड गवर्नेंस के लिए बगावत को करते थे। और गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट जो था बहुत यानी स्ट्रेंथ के रखा हुआ था, एक कैरेक्टर, एक कॉन्डक्ट दिया हुआ था कि साहब आपने कोई गलत काम नहीं करना। अब जैसे पाकिस्तान बना तो मुझे भी मौका मिल गया सबसे में जाने का, और मैंने देखा कि जिस तरीके से फिर गुड गवर्नेंस को दानिस्ता तबाह किया गया है और ब्यूरोक्रेसी को दानिस्ता जूते मार मार के गलत काम करने पर मजबूर किया गया है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं सुनता। हर वक्त आप ये सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने सब कुछ ये किया है उसकी वजह से, हालांकि ब्यूरोक्रेसी जो है अच्छा नहीं, इनकी चीजें जो है वो अपनी जगह ठीक है, अक्सी मुफ्ती ने लिखा है वो भी अपनी जगह ठीक है। देखिए किस्सा ये है, ये इतनी गंभीर चीज है कि आप इसको कई एंगल से देख सकते हैं। मैं अपने एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये बाकी लोग तो लायक नहीं, पैसे बनाया, दौलतें बनाई और नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। मेरा सब्जेक्ट तो सिर्फ ये है कि ब्यूरोक्रेसी को और गुड गवर्नेंस को दानिस्ता कैसे तबाह किया गया, कैसे, तो ये 2 मीनार उसी तरफ जा रहा है। बात होती है जब आप ये सिचुएशन का अंदाजा था भी है, आपने इसका हल सियासत में जाना और पॉलिटिकल पार्टी के करने की कोशिश की आपने या क्या? देखिए किस्सा ये है कि जब मैं रिटायर हुआ 94 में, उन्होंने आर्टिकल जो ज़्यादातर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, क्योंकि उससे पहले मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। 4 साल में थे और मैंने महसूस किया कि साहब ये वेस्ट का टाइम है, क्योंकि ये लोग मेरे अपने आप को रिकॉर्ड करने वाले इधर इमरान खान ने अपनी ये लॉन्च कर दी के आसपास बातें बड़ी अच्छी। तो एक दिन लाहौर में एक जगह मैं भी पकड़ा गया, इमरान खान साहब अरेस्ट कर लिया, आप भी आइए। घर के अंदर से 2-3 शुरू हो गया, जैसे ही अंदर एंटर हुआ मेज पे बैठे मेरे साथ आप मेंबर बनेंगे, मेरे कहने में मेंबर एक सवाल पूछे हुए और उसका अगर हाँ में जवाब आ गया तो मैं ऐड कर उधर गए। खाने बड़ी अच्छी बातें, कितनी बातें जो हम लोग तो बाद में मैंने कहा ये सवाल है कि क्या आप अपनी पार्टी में इलेक्शंस करवाएंगे या नहीं? कहने लगे कि नहीं, शुरू में नहीं करवाएंगे, उसके बाद करवाएंगे। मैंने कहा आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिर इलेक्शन आपको कौन करेगा? खैर बात खत्म होगी, मैं बैठ गया, बाहर आए, उन्होंने कहा आप मेंबर, मैंने कहा मुझे जवाब मिल गया, जिस पार्टी का इलेक्शन नहीं है मैं वहाँ जाने को तैयार। उसके बाद फिर तंग आके मैंने कहा किस्सा ये है, अगर और कोई पार्टी ऐसे नहीं बनाती तो हम क्यों ना ट्राई करें? लेकिन इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट एंड नॉट टू लव एट ऑल। आपने भी बहुत की बात की तो मतलब ये उस वक्त फिर हमने ये लॉन्च की, इश्तेहार दिया बाकायदा, इस तरीके से हम बनाना चाहते हैं। फिर वो अलग कहानी 8-10 साल बड़ी कोशिश की और उसमें फिर ये अनफॉर्चुनेटली ज़माना में शर्त था, जब मैंने बताने के मुँह खोले हुए तो करप्शन हर तरफ थी। हम चाहते थे उस किस्म की पार्टी जिसके अंदर पैसे का बिल्कुल इस्तेमाल हो और इलेक्शन हो और लोग अपने कॉन्डक्ट से आगे चलें। इसमें आप करने के लिए नहीं बंद कर साहब, ये जो होता है ना, फिक्र होती है, जो ख्याल है, जो नजरिया है, ये आदमी को किसी न किसी जगह पे आमिर भी बना देता है। इसलिए वो समझता है कि मैं ही दोस्त हूँ और बाकी जो लोग हैं वो सुनाने से ज़्यादा सुझाने की बात करता है, महसूस कराने की बात करता है, जिंदगी के करीब आपको ले जाता है। तो ये आपका फिक्शन से ईमान क्यों उठ गया, ये इमाल क्यों उठ गया? मैंने तो कहा कि मेरी सिम्त बदलती रही है, एक सिन्फ अदब से दूसरी सिन्फ अदब तक। फिक्शन से मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो हूँ ही फिक्शन राइटर, शायरी तो मुझे आती नहीं और मैं तो हूँ ही फिक्शन राइटर।
इन चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ। गार्डिंग उन्होंने बात की थी, लेकिन उसके साथ एक टाइम फैक्टर भी है। मैं ख़ास तौर पे ख्याल रखता हूँ कि टाइम का भी अंदाज़ा हो, ताकि अगली जनरेशन जब पढ़े तो उनको अंदाज़ा हो कि किन रास्तों से हम गुजरे। बस ये मेरा सर एक क्वेश्चन छोटा सा मैं तो आपने कहा वो ताज़ा अच्छे ये हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी के बारे से बात हुई, तो क्या ये रीजन जो है अच्छा बुरा होगा? क्या ये ताज़ा माइंड सेट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी माइंड सेट नहीं है, स्टूडेंट माइंड सेट कि जब हम इसे इज्तिमाई सतह पे देखते हैं तो हम डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने भी सही आइडेंटिफाई किया। आप इंडिया के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये पूछ रही थी कि एक मिनट, ये जो आपने कहा ना तीनों माइंड सेट जो है, ये इनका इत्तेहाद सलासा है जो मुल्क को तबाह कर पूछना चाहती थी कि आपका नजरिया क्या है उदास नस्ल में जो उसके बाद आया, उससे आपने क्या समझा? बहुत अच्छा है। नहीं आपको टकराया जो है वो आपका दरिया नहीं चकराया, मुझे फैशन में चकराया है। आपका दरिया फैशन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, बल्कि ईश्वर लिखना चाहती है, मैं कुमार से करता हूँ कि आपके दरिया से खौफजदा क्यों? मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैं उसके फार्म से उसकी देखिए इल्मियत का उसमें गैर जरूरी नफूज है। एक सदी का नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे उसमें बात यह है कि जो मैंने शुरू में भी अर्ज किया था ना कि मेरी सरकारी मुलाजमत जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकारी मुलाजमत से ये कि क्या मैं इस किस्म का नावल लिखने के लिए जितना वक्त चाहिए वो मैं अफोर्ड कर सकता था। यानी आपने कहा ना पूरा स्पेक्ट्रम उसका जो है, स्पेक्ट्रम के लिए आपको फिल्म के समुंदर में हर वक्त गोताजान रहना पड़ता, तो वो मैं नहीं कर सकता। बात जब देखिए एक्सटेंडेड इमेज है ना, वो गौतम का एक्सटेंडेड इमेज है ना। मैंने तो सिर्फ आपको अपनी सिमत का वजह बताई है, आप उसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं, आपने बेहतर किया कि अपने ब्लॉग वाला रास्ता नहीं, जो मैं कर सकता था ये वो कॉन्शियसनेस ऑफ दुनिया के ये नहीं वो मैग्नम लेकिन ये कि हम नहीं हर बंदा उसको कर सकते, लेकिन हम एडमिट कर नहीं सकते सामने। आज अपना कोशिश की हर आदमी शायर को नहीं होता, हर आदमी शायरी नहीं कर सकता, और जो शायर थोड़ा बहुत शायर होगा वही आराम की चीज में बात कर सकता है। ये तो बात और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। मैं आपकी दान देता हूँ, मैं आपकी दान देता हूँ। समझ में नहीं आता। देखिए मैं समझ की बात नहीं कह रहा हूँ, आप उनको सलाम करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं भी रास्ता लिख सकता, और अगर नहीं लिख सकता तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। अपना अफसाना तो लिखे ना, आप अफसाने से भाग के लेकिन मैं अफसाना लिख रहा हूँ, और अफसाना देखिए 6 मजबूए हो चुके हैं, और उसमें यानी मौजूद ज्यादातर जो है, जैसे आपने खुद भी कहा उसमें मोहब्बतों का जिक्र इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया मोहब्बत ही लिखती रहती है, उसका भी रिएक्शन है। मतलब ये कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के खिलाफ है, इसको भी कहना पड़ता है। वैसे आप नावल करके जो आपका तजर्बे है सही के और अपनी उनकी जो भी है उसमें एक नावल आप बड़ा दे सकते हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है जी, मेरा प्रोग्राम भी था, लेकिन वो ये है कि अब एक स्टीरियोटाइप मॉडल बन गया है कि आपने नावल लिखना है तो वैसा लिखे वगरना नहीं। लिखने वाले का होता है उसे तोड़ दे। ये आप लोग फरमाइश कर रहे हैं नावल की या डिमांड कर
और उम्मीद है कि अल्लाह वाला और तैयारी करके आएंगे, पत्थर भी मारेंगे, पत्थर नहीं मारे, क्योंकि मुफ्ती साहब की शख्सियत ऐसी है कि इन पे पत्थर उठाया नहीं जाता, पत्थर उठाया नहीं। उम्मीद है कि अभी भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 10 मिनट का वक्फा करें कि चाय पानी का इंतजाम हो जाए।